Hey, you, welcome back. It's Jyoti. What's happening? I am back with a Sham Sharma reaction because इसीलिए भेजा मुझे after they saw my reaction to the Alpha trailer. This one was sent to me and I was very happy to watch because एक तो रणवीर सिंह के को बैन करने की कोशिश हो रही थी जो आज तक कभी नहीं हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन से बॉलीवुड में जैसे ही लोग ऊपर उठते हैं ना तो and I followed that because I was like, how can they just ban someone? And then I realized that that was completely out of their jurisdiction, that body, that film body. Because if Ranveer Singh has done anything wrong and he does owe the producers any money, then they have to go about it in the through the proper channels, na? Go legally, go pursue this through the revenue department or wherever else. The union wala body से आपका क्या लेना देना है and how can you just ban someone? So obviously रणवीर की टीम ने उनको legal notice भेजा and they retracted their ban immediately. I find it very funny how, you know, a few families in Bollywood just control things or at least try to control them. Now the control is reducing, but and then they bully people using their family friendships. ठीक है, let's watch this video. How Ranveer Singh destroyed the Nepo Kids empire in Bollywood. In this video, we discuss how Bollywood has long operated through a lobby and nepotism-driven system. Star kids often continue getting big projects even after delivering multiple flops exactly and causing huge losses to producers while talented outsiders struggle for opportunities and recognition. And the first person to bring this up was Kangna. Let's just be very real about it. You also look at the recent controversy involving Ranveer Singh when FWIs reportedly took action against him. Many people question why similar action was never taken against established insiders despite past controversies involving several big Bollywood stars. We then explore how the industry is slowly changing. FWIs eventually had to soften its stance, and even major production houses like Dharma have undergone significant changes in ownership. Yeah, 50% ownership and influence. These developments suggest that the traditional power structures in Bollywood may be weakening, making it harder for nepotism alone to guarantee success. There is no success. Name one Nepo kid who has turned out to be a decent actor. And I'm talking the Janvi Kapoor, Khushi Kapoor, Sara Ali Khan, wo generation, you know, this new Saif's son, who else? Other people. I've seen clips and I was just like, oh my God. Clearly acting genes pass on nahi hoti hai. You know, acting skills are not passed through genes. We have now confirmed proof of that. So let's watch this video. I'm going to watch it on 1.25. 1, 2, 3, play. देखिए भारत में बॉलीवुड के नेपो किड्स के कुछ मास्टरफुल परफॉर्मेंसेस हमने रिसेंटली ही देखे Master. Oh my God, is that her doing Bharatanatyam? Alpha to we saw. Oh God. Oh, they muted the copyrighted part. बॉलीवुड में देखिए ऐसे नेपो किड्स की कोई कमी भी नहीं है एक दूसरे को अपनी दुनिया बना लेते हैं क्योंकि वो प्यार ही क्या जिसमें थोड़ा सा बचपना ना हो What dialogues do you have? What this film is commendable because it takes some kind of optimism to work this hard to get 1% of Dhurandar's box office. I think post Dhurandhar we are living with that weight कि भाई हम भी कुछ ना कुछ कर ले. लेकिन जब से रणवीर सिंह ने धुरंधर फिल्म की सीरीज निकाली है पूरे के पूरे इस बॉलीवुड का जो नेपोटिज्म माफिया है उसकी बुनियाद हिल गई है So, and one more thing. Don't with the movie mafia. रणवीर ने बॉलीवुड की पूरी इक्वेशन चेंज कर दी है जो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल था बॉलीवुड का जो पिछले 70 सालों से चला हुआ आ रहा था उसको पूरा बदल कर रख दिया है This scene, man. और हाल में ही आपको याद होगा कि FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन का एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड का कोई भी इंसान जिनको FWICE रिप्रेजेंट करता है वो रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेगा अब देखिए हफ्ते भर के अंदर अंदर उन्होंने ये नॉन कोऑपरेशन नोटिस चुपचाप वापस ले लिया अब ये दबदबा नॉन नेपो बेबी जैसे रणवीर सिंह और आदित्य धार का बॉलीवुड में हो रखा है तो आइए देखते हैं कि कैसे एक नई जनरेशन ने जिसमें रणवीर सिंह आते हैं आदित्य धार जैसे फिल्म मेकर्स आते हैं संदीप बंगा रेड्डी जैसे फिल्म मेकर्स आते हैं उन्होंने कैसे बॉलीवुड के पुराने नेपोटिज्म माफिया और बॉलीवुड के पूरे बिजनेस मॉडल की नींव हिलाकर रख दी So sad. I don't know how we allowed our film industry to get hijacked. बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम देखिए बॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है ना ये एक प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं है ये इटालियन माफिया को ज्यादा रिजेंबल करती है देन एन एक्चुअल फिल्म इंडस्ट्री क्योंकि हम भले ही बॉलीवुड को एक फिल्म इंडस्ट्री की तरह देखते हो बट अल्टीमेटली बॉलीवुड क्या है कि बॉलीवुड एक धंधा है जिसको कुछ एस्टैब्लिश फैमिलीज रन करती हैं दैट इज द बॉटम लाइन इसीलिए आप देखिए कि बॉलीवुड में कुछ ही फैमिलीज के मेंबर्स को चांस पर Should have never allowed this to happen. रहता है जबकि टैलेंटेड आउटसाइडर्स जो होते हैं उनको एक तो चांस नहीं मिलता ऊपर से उनकी फिल्म अगर अंडर परफॉर्म करती है तो भैया उनकी तो करियर ही खत्म टाइगर श्रॉफ को देखिए चांस पे चांस मिलता रहता है
Seriously. अनन्या पांडे को चांस पे चांस मिलता रहता है फाइनेंशियल डिजास्टर पे फाइनेंशियल डिजास्टर देने के बाद। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। How cute. इट्स माय टैलेंट। बॉलीवुड लेजेंड अर्जुन कपूर को भी देखिए कितने चांसेस मिले हैं। अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारां के नाम का। रणबीर कपूर को देख लीजिए, जिनकी एक ही फिल्म आज तक ढंग से हिट हुई है, लेकिन उसके बावजूद इनको जूनियर एनटीआर और रामचरण जैसे एक्टर्स के ऑपोजिट कास्ट किया जाता है, और वहीं पर यमी गौतम जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को बॉलीवुड में रोल्स नहीं दिए जाते। टैलेंट की जगह हमेशा सरनेम को प्रेफरेंस दी जाती है। ये बात कृति सनोन, तापसी पन्नू और यहाँ तक प्रियंका चोपड़ा जैसे एक्ट्रेसेस ने भी बोली है कि जो अपॉर्चुनिटीज आलिया भट्ट जैसे एक्ट्रेसेस को मिलते हैं, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज लास्ट नेम ना होने वाले एक्ट्रेसेस को उतनी आसानी से नहीं मिलती। राधिका मदान जैसी एक्ट्रेसेस ने खुद सामने आके टीवी एक्ट्रेस होने की वजह से अपनी हार्श एक्सपीरियंस शेयर की है। You had a tag of either a television actor or a movie actor. There was no space in between. So the tags were pretty harsh. सिविलियर What the hell? श्रीकांत मैसी ने शेयर की है। सुशांत सिंह राजपूत का केस तो हम लोगों को पता ही है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स इंडस्ट्री के खिलाफ साइडलाइन होने की वजह से गायब हो चुके हैं। विद्युत जामवाल जैसे टैलेंटेड एक्टर्स, इनकी एक दो मूवीज अंडर परफॉर्म की, इस वजह से इनको भी गायब कर दिया गया। अगर हम स्पेसिफिक स्टूडियोज की बात करें तो आप देखिए धर्मा प्रोडक्शन को। धर्मा प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली 2000s में और 2010s में बॉलीवुड के नेपो किड्स का लॉन्च पैड बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए धर्मा प्रोडक्शंस एक ड्रीम फैक्ट्री है, मतलब इस तरह के ड्रीम्स। गुड इवनिंग। Straight, left, second. थैंक यू। Tanya. तुम लगती तान्या हो, तुम में एक अजीब सी तान्या ने से। थैंक यू। What the hell? इंटरेस्टिंग तो हमारी आंखें हैं। अब सवाल बस ये है कि इन्हें पढ़ूं कैसे, किंडल या हार्ड कॉपी। क्या है यार ये? लेकिन दूसरों के लिए धर्मा Seriously? प्रोडक्शन एक क्लोज क्लब का सिंबल है। आप देखिए धर्मा प्रोडक्शन, जिसको नेपोटिज्म लॉन्च पैड भी बोला जाता है, उन्होंने किस किस को लॉन्च किया? आलिया भट्ट को लॉन्च किया, वरुण धवन को लॉन्च किया, जानवी कपूर को, ईशान खट्टर को लॉन्च किया, अनन्या पांडे, तारा सुतारिया, इब्राहिम अली खान। ये इस तरह से नेपो किड्स को प्रायोरिटी देते हैं कि एक समय पे कंगना रनावत ने डायरेक्टली करण जौहर को बोला था कि अगर आपके लाइफ पे बायोपिक बनाई जाए तो उसका नाम रहेगा मूवी माफिया। In my biopic, if ever it's made, you know, you'll play that stereotypical The first one. who is like, you know, very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. करण जौहर आपको याद होगा एसएसआर को भी इंसल्ट कर चुके हैं। Sushant or Karthik, the actor you look best with. I think I look good with both. Then maybe like Rata was appreciated only for chemistry, so I would say that. Really? Where was the chemistry? Where was this chemistry? क्योंकि एक बार सुशांत सिंह राजपूत ने नेपोटिज्म को लेकर इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज किया था। You deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. So Then sad. the whole structure. He of the was so industry- intelligent. ये बात रणवीर सिंह ने भी नोट की थी। That time, this is around the year 2000. It was still, industry was still very close. You know, there was a lot of nepotism at that time. My chances were bleak. Amir So I Khan kind of sitting gave there up on going, my yeah, dream. I know, I felt run it was that too shit. far-fetched for me. अभी हाल में ही देखिए कार्तिक आर्यन और धर्मा प्रोडक्शंस के बीच में फॉलआउट की रिपोर्ट भी सामने आई थी। करण जौहर ने क्यों निकाल दिया आपको अपनी फिल्म से? कि जिसमें बड़े और छोटों के बीच में कभी कोई तकरार होती है तो छोटे कभी कुछ बोलते नहीं, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। मैं कभी कुछ उस बारे में बोलता नहीं हूँ और ना मैं बोलना चाहूँगा। ऑडियंस वर्डिक्ट पे वर्डिक्ट He's so scared. देती है कि आप जितने भी नेपो किड्स लॉन्च करते हैं उसमें से 70% हमको पसंद नहीं आते, लेकिन फिर भी इनको चांसेस मिलते रहते हैं। हालत ऐसी हो गई थी कि हिंदी मूवी इंडस्ट्री को बॉलीवुड बोला जाता है, एक समय पे जो इंडियन मूवी इंडस्ट्री को डोमिनेट किया करती थी। 2022 में बॉलीवुड मूवी सिर्फ इंडियन मूवी इंडस्ट्री का 22% रेवेन्यू अकाउंट कर रही थी। बॉलीवुड को 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, लेकिन उससे भी बॉलीवुड ने क्या लेसन लिया? 2023 में ये जोया अख्तर की हाँ। चीज रिलीज कर रही है, जिसमें They are not gonna learn. सुहाना खान, खुशी कपूर, अगस्त्य नंदा, They live in their bubbles. फिर आता है लव्यापा, मिर्जिया और नादानिया, सब में वही घिसी पिटी पुरानी स्टोरी और सब में नेपो किड्स को लॉन्च कर रहे हैं। और Who इसके knows बावजूद about ये these फिल्में पिटती movies? हैं। फिल्मों की ऐसी हालत होती है कि अल्टीमेटली करण जौहर को अपनी दुकान बचाने के लिए आधार पूनावाला से फाइनेंशियल इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। धर्मा प्रोडक्शन का 50%. आधा हिस्सा 1000 करोड़ में बेचा गया था, लेकिन उसके बाद भी ये क्या निकलते? धड़क 2, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जिगरा। ऑल्दो टू बी फेयर टू देम, उन्होंने किल नाम की एक मूवी निकाली थी रिसेंटली 2024 में, और वो लेजिटिमेटली एक बहुत बढ़िया मूवी थी। आई अर्ज एवरीबॉडी कि अगर आपको एक बहुत ही बढ़िया इंडियन एक्शन मूवी देखनी है तो वो किल मूवी जाके देखिए। Oh, really? बॉलीवुड जो है वो सिर्फ फैमिलीज इन्फ्लुएंस से नहीं चलता। इस इंडस्ट्री को, जैसा कि मैंने कहा, फैमिलीज चलाती हैं। ये बेसिकली फैमिली रन बिजनेसेस और पर्सनल रिलेशनशिप्स का एक नेटवर्क है। आप मेन प्रोडक्शन हाउसेस देखिए बॉलीवुड की, ज्यादातर मेन स्ट्रीम मूवीज इन्हीं प्रोडक्शन हाउसेस से निकल कर आती हैं, और ये सारी की सारी प्रोडक्शन हाउसेस बॉलीवुड फैमिलीज कंट्रोल करती हैं। यशराज फिल्म्स हो गई, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट हो गई, एक्सेल एंटरटेनमेंट हो गई, धर्मा प्रोडक्शंस हो गई, एसकेएफ प्रोडक्शंस हो गई, बालाजी टेलीफिल्म्स हो गई, विशेष फिल्म्स हो गई। एक तो ये सारी फैमिलीज जो हैं पूरे के पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल करती है। उसके ऊपर से इनमें एक डिलिबरेट इंडोगेमी भी होती है, यानी ये फैमिलीज एक दूसरे के अंदर शादी भी करती रहती है ताकि ब्लड लाइन भी मेंटेन रहे और कैपिटल भी इन्हीं की फैमिलीज के अंदर रहे। और ये सारी फैमिलीज जो है, इनका कन्वेंशनल विजडम रहता है कि देखिए बॉलीवुड मूवीज बनाने का और बॉलीवुड मूवीज को सक्सेसफुल बनाने का एक ही तरीका है, वो है कि भैया आप सिर्फ इंडियन ऑडियंस को केटर नहीं कर सकते, इंडियन ऑडियंस को खुश नहीं कर सकते। आपको एनआरआई ऑडियंस को टारगेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको
पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और गल्फ ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर आपकी मूवीज एनआरआईज ने देख ली या फिर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और गल्फ ऑडियंसेस ने देख ली तो वहीं से 40-50 करोड़ आपको आ जाएंगे। इंडिया में चली बहुत अच्छी आपकी फिल्म, चली भी नहीं, बस बजट उन्होंने वापस कमा लिया फिल्म का, तो आराम से 50 करोड़ आपको बाहर से मिल गए, हो गई मूवी आपकी सुपर डुपर हिट। लेकिन 2025 में जो रणवीर सिंह की धुरंधर निकल के आई थी, उसने ना सिर्फ इन बॉलीवुड फैमिलीज को हिला दिया है, बल्कि इस पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को हिला दिया। इस मूवी में ना सिर्फ रणवीर की एक्टिंग फिनोमिनल थी, मूवी बेहतरीन थी, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज बॉलीवुड हैज एवर प्रोड्यूस्ड, लेकिन आप देखिए इस मूवी ने परफॉर्मेंस कैसा किया है कि भाई इस मूवी को पाकिस्तान में और गल्फ देशों में बैन कर दिया गया था। उसके बावजूद धुरंधर 1, धुरंधर 2 दोनों ने मिलकर 3000 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाए, सिर्फ और सिर्फ इंडियन ऑडियंस और इंडियन डायस्पोरा के दम पर। तो बेसिकली रणवीर सिंह ने, आदित्य धर ने और धुरंधर फ्रेंचाइज ने ये प्रूव कर दिया है कि आपको पाकिस्तानी ऑडियंस को और गल्फ ऑडियंस को खुश करने की जरूरत नहीं है, उनके तलवे चाटने की जरूरत नहीं है अपनी फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए। यू जस्ट हैव टू मेक अ वेरी गुड मूवी, बस इतना करना है। और यही चल रहा है, ह्यूमिलिएट हुई धुरंधर की वजह से। बॉलीवुड का जो बिजनेस मॉडल है वो हर्ट हुआ है। बॉलीवुड के जो एक समय पे पापा हुआ करते थे, दाऊद इब्राहिम, उसको भी धुरंधर ने नहीं छोड़ा। तो भाई बॉलीवुड बड़ा नाराज है कि जिस समय पे धुरंधर मेनिया पीक पर था, उस समय पे फरहान अख्तर आते हैं पिक्चर में, जो सीए पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। He will regret that day for the rest of his life. उन्होंने मई 2026 में FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज को अप्रोच किया और फिर FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किया कि भाई रणवीर सिंह ने 2023 में डॉन 3 मूवी साइन की थी, 2025 तक उस मूवी की शूटिंग शुरू नहीं हुई थी। तो अल्टीमेटली धुरंधर की सक्सेस के बाद रणवीर सिंह ने ये मूवी छोड़ दी और इससे फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट को 45 करोड़ का लॉस हुआ। तो हमको डैमेजेस चाहिए। Federation of Western India Cine Employees imposed a non-cooperation directive against him. The Federation of Western India Cine Employees has now issued a non-cooperation directive against actor Ranveer Singh. और देखिए FWICE जो है वो हिंदी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने वाला अम्ब्रेला बॉडी है। बेसिकली एक ट्रेड यूनियन फेडरेशन है जिसके 5 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। जब FWICE नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव इशू करता है तो सारे एफिलिएटेड मेंबर्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो उस टारगेटेड इंडिविजुअल के साथ किसी भी प्रोजेक्ट में काम ना करें। मतलब बेसिकली बॉलीवुड जो है वो रणवीर सिंह को बॉयकॉट कर रही थी धुरंधर की सक्सेस के बाद। और कमाल की बात, सस्पिशियस बात यह है कि चलिए ठीक है, रणवीर सिंह ने अचानक से मूवी छोड़ दी, आपको डैमेजेस चाहिए, आप इसको कोर्ट में अप्रोच कीजिए, आप इसको लीगली सॉल्व कीजिए, रणवीर सिंह को आप लीगल नोटिस भेजिए। प्रॉब्लम यह है कि FWICE ने अपनी पूरी हिस्ट्री में कभी भी किसी एक्टर के प्रोजेक्ट एग्जिट करने पर नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव नहीं डाला कि भाई ये कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है कि एक्टर का एग्जिट जस्टिफाइड था कि नहीं और कितना डैमेजेस देना है, ये सिविल कोर्ट्स या कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन का काम है। इसमें ट्रेड यूनियन कहां से आ गया? रणवीर की लीगल टीम ने भी यही पॉइंट किया है कि इसमें FWICE कहां से घुस गया यार। ये तो वही बात होगी कि सारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें बांग्लादेश आके इंटरव्यू किया। साले तुम अपना लुंगी देखो ना यार, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। और ऐसा कई बार हो चुका है कि एक्टर्स ने प्रोजेक्ट को अचानक से छोड़ दिया। शाहरुख खान ने छोड़ रखा है, सलमान खान ने छोड़ रखा है, अभिषेक बच्चन ने छोड़ रखा है, करीना कपूर ने छोड़ रखा है, ऋतिक रोशन ने छोड़ रखा है, लेकिन FWICE ने इन पे कोई एक्शन नहीं लिया। स्टूडियोज ने रातों रात रणवीर सिंह को हटा के बॉम्बे वेलवेट में रणवीर कपूर को ले लिया। उस समय ऐसा कोई नहीं था इंडस्ट्री में जिससे मैंने बात ना की हो। मतलब करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, किसको फोन नहीं किया मैंने कहा यार ये तो कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सबने मेरे को बोला तुम पागल हो गए, करो, करके देखो, ये करेक्ट है, बड़े एक्टर के साथ करो। मेरे पास छोटा एक नया एक्टर था, उसका नाम था रणवीर सिंह, उसमें किसी का फेथ नहीं था, किसी का फेथ नहीं था। और रणवीर इज अ फैंटास्टिक एक्टर आल्सो। तो रणवीर बाहर हुए, रणवीर तक पहुंचने में मुझे 1 साल लगे, मेंटली, इमोशनली। मैंने बीच में अगली बनाई, मैंने इसलिए अगली बनाई बिकॉज मैं थोड़ा इमीडिएटली हजम नहीं कर पाया। और रणवीर इज ऑल्सो डेडिकेटेड, कोई मतलब सच डेडिकेटेड एक्टर। तो मुझे लगा मैं ही गलत हूँ, और ये गलत हूँ। ये पूरी इंडस्ट्री ने मेरे को बोला कि जो लोग तुम्हारे लिए डिसीजन ले रहे हैं सब सही है, स्टूडियो एक्सपीरियंस है, तू ही है जो डरता है बड़े बजट की फिल्म बनाने से, तू ही है जो डरता है बड़े स्टार के साथ फिल्म बनाने में, तू ही है जो डरता है। कार्तिक आर्यन को अचानक से हटा दिया गया था दोस्ताना 2 से, ऐश्वर्या राय को अचानक से चलते चलते फिल्म से हटा दिया गया था, लेकिन तब भी FWICE ने इंटरवीन नहीं किया और किसी स्टूडियो को अटैक नहीं किया। हाफ गर्लफ्रेंड में सुशांत सिंह राजपूत को हटा के अर्जुन कपूर को ले लिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत को डिलिबरेटली, सिस्टमैटिकली साइडलाइन करने का कैंपेन किया था बॉलीवुड में, तब WICE ने कभी भी इंटरवीन नहीं किया। लेकिन यहाँ पर इनको इनकी टांग घुसड़नी है। लेकिन अब देखिए मामला इतना बदल गया है कि अब रणवीर सिंह जैसे लोगों के पास, आदित्य धार जैसे लोगों के पास, इनके पास भी अब इकोनॉमिक और इंडस्ट्री क्लाउड बन गया है। इनकी मूवी इतनी सक्सेसफुल हो गई है कि भाई हर एक एक्टर, प्रोडक्शन हाउस इनके साथ काम करना चाहता है। मुकेश अंबानी सपोर्टेड भेजा FWICE को, और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर FWICE ने अपना नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव विड्रॉ कर लिया, जैसे ही इनको लीगल नोटिस आया। अब हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि रणवीर की टीम ने बोला क्या था, लेकिन कोर्ट पे रिस्पॉन्ड करेगा FWICE? बताइए, 2-3 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने विड्रॉ कर लिया। मतलब कंपीट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि ज्यादा तेजी से सरेंडर कौन कर सकता है। अल्टीमेटली आप देखिए रणवीर सिंह की जो सक्सेस स्टोरी है, धुरंधर की जो सक्सेस स्टोरी है, आदित्य धार की जो सक्सेस स्टोरी है, ये आपको दिखाती है कि कभी कभी दुनिया में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। अल्टीमेटली कितना भी ये नेपोटिज्म माफिया जो है ये बॉलीवुड को कंट्रोल करने की कोशिश करे, अल्टीमेटली जो टैलेंट है, जो एक रिडिकुलस अमाउंट ऑफ टैलेंट है, जो क्वालिटी है, वो जीत जाती है मार्केट में। आज हालत ये हो रखी है कि धर्मा प्रोडक्शंस अपने प्रोडक्शन हाउस का 50% स्टेक आधार पूना वाला को बेचना पड़ा अपना स्टूडियो बचाने के लिए। नेपो किड्स जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ये लोग FWICE का इस्तेमाल कर रहे हैं रणवीर सिंह को अटैक करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद रणवीर सिंह आज बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार में से एक है, टॉप 3 बिगेस्ट स्टार्स में से एक है, एटलीस्ट दिस मोमेंट इन टाइम। अगली उनकी जो भी मूवी आती है वो बॉलीवुड की सबसे
एंटिसिपेटेड मूवी होने वाली है. सिमिलरली आदित्य धार की जो अगली मूवी आने वाली है वो बॉलीवुड की सबसे एंटिसिपेटेड मूवी होने वाली है. एंड आई होप कि इसी तरह आगे जाकर भी कि जो बॉलीवुड की फैमिली सिस्टम है, जिन्होंने बॉलीवुड पे कंट्रोल रखा हुआ है, वो कंट्रोल थोड़ा कम हो. जो आउटसाइडर्स हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी थोड़ा फुटहोल्ड मिले बॉलीवुड में, जैसे रणवीर को, आदित्य धार जैसे लोगों को अब मिल चुका है. एंड आदित्य धार और रणवीर सिंह दूसरे टैलेंटेड आउटसाइडर्स के लिए दरवाजे खोले. आदित्य धार ने जब अपनी स्टूडियो B52 फाउंड की थी तो उन्होंने यही कहा था कि वो अपने स्टूडियो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दूसरे टैलेंटेड आउटसाइडर्स के लिए दरवाजा खोलने के लिए, ताकि जो रियल टैलेंट है इंडिया का वो बॉलीवुड में आके शाइन कर सके. आई होप कि फ्यूचर में हमको ऐसे और टैलेंट देखने को मिले. और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बॉलीवुड को एक वर्ल्ड क्लास मूवी स्टूडियो बनाने के लिए या एक वर्ल्ड क्लास मूवी इंडस्ट्री बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप्स बॉलीवुड को लेने चाहिए ताकि वो ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री से कंपीट कर सके. एंड अगेन गाइस, आप अगर हमारे से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स पाना चाहते हैं और अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि शाम शर्मा शो किस तरह के टॉपिक्स पर अपने फ्यूचर वीडियोस बनाएं और किस तरह के टॉपिक्स पर अपने इंग्लिश वीडियोस बनाएं एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, तो आज ही हमारे नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबर बने. बाकी मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा. तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें. फिर मिलेंगे और आप सबको I always have said this, that I feel like Karan Johar and his entire setup is the biggest cancer, has been the biggest cancer for India's creative industry and India's film industry, because the amount of damage that he has done to the functioning of a relatively healthy industry, it cannot be undone just like that. But yes, B52 bola, I think it's B62, Aditya Dhar ki production house and his brother. But yes, B62 hai, yeah. B62 Studios has a responsibility now that they have the clout and they have probably even the backing and the faith that one needs investors to have. It has that now, you know. So I feel like B62 can and will, you know, become the flag bearers of meritocracy in the system and in the industry. So I'm like waiting to watch it, because honestly I stopped watching the movies. They just like I said, the only movie I actually watched आगे से was Uri, and again that's Aditya Dhar, right? उसके अलावा कुछ ऐसा मेरे को नहीं, you know. I even after I left radio I stopped following because I didn't need to anymore for work reasons. So I was just and all these people he's named, actors who kept getting chance pe chance pe chance pe chance, even after showing us that they cannot act. You've got to be a little realistic, no? I mean, what kind of bubbles and yes men situations do these people live in? And you know, the worst thing about Karan Johar is he may have sold half his production house, but he's not apologetic, or he doesn't think he did anything wrong. He till today thinks he's a victim. You know, if you see his recent interviews, I've seen some clips, he still acts like he's a big victim today. And he's like, now though I take it as a compliment and like, no dude, it's not, relax. And that clip of him like, don't mess with the movie mafia, I know that's from a show and everything, but you think they're really trying to like it's just a show? No, they're trying to, you know, respond to people who've trolled them and everything by putting those kind of dialogues and scenes in. Anyway, it's like I said in my Dhurandhar review, it's up to you and me, the audiences, to reject all this BS and to, you know, from our side try to tell the makers what we will and will not accept as content, as art, as movies. They keep saying, why do we keep hearing crappy commercial songs? Arey, public ko yahi chahiye, you know. And you hear these dumb like Turkey songs and stupid commercial beats and whatnot. It's like, you know, guys, stop consuming that stuff, which we kind of, I think, showed the movie industry with Dhurandhar, that this is the level of arts and filmmaking that we will accept. Everything else. So anyways, hopefully it's good times ahead for Hindi films. Chalo, I will end this here. Let me know what you thought of what was said here. Did you watch any of these Nepo Kids ka films? If you did, which one was your favorite? Favorite to koi hogi nahi. Which one did you think was the most hilarious / lame? Let me know in the comments, and please do hit the subscribe button and support the channel. I really want to get to 200K this year, so please help me in that journey. And I'll see you in the next one. Take care of yourselves. Live long and prosper.